and hi to all. I welcome you to the Swiflearn, which is India's most sincere learning destination, providing classes for 1st to 10th. Okay, so as you all know that today is the session number 2 of Quadratic Equation. Till then, who all are online, just drop me a message. Hello ma'am, hi ma'am, कैसे हैं आप? और मैं आपको स्विफ्टलर्न के बारे में बता देती हूँ. As so far we have done only one session of quadratic equation. We will be continuing that same, and today we will be discussing how we can find out the factors or the roots of quadratic equation. ठीक है, तो चलिए. Yes, those who are online, just drop me a message. Hello ma'am, वही बोलना जरूरी है कि मैम कैसे हैं आप, ठीक है. And I hope that you all are safe and sound. That is the most important thing. ठीक है, तो चलिए, we can say that Swiflearn, India's most sincere learning destination, and yes, I can say that the one and only destination which is providing you the concept-based learning. So when I talk about concept-based, it's actually concept-based, right? आप यहाँ पे भी classes में देख सकते हैं कि how we are clarifying your concepts. I think that is the most important thing. If I talk about the platform, the very first thing is that we are providing you 100% live and interactive classes. Now, when I talk about live, सबको पता है आजकल तो live YouTube पे live आना, Facebook पे live आना, आप सबको पता है. But when we talk about the live classes, it means that face to face है आप. जैसे आप video call करते हैं ना, similar that way, your teacher will be giving you the lesson. Okay, after that interactive. Yes, interactive means ऐसा कुछ नहीं है कि recorded session होगा, आप मैम के साथ बात नहीं कर सकते, आप मैम से doubts नहीं पूछ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आप मैम से face to face अपने doubts भी clear कर सकते हैं, ठीक है. Yes, Adya Sharma is saying hi Adya, how are you? कैसे हैं आप? Okay. Now the very next, if I talk about, I'm fine Adya, I'm fine. If I talk about personalized attention batch with maximum 6 students, yes, we don't have more than 6 students per batch, or we can say that this is the only way we can give personalized attention. I think that is the most important thing. Personalized attention देना class में बहुत important होता है, but it happens कि 40 students की class में personalized attention teacher नहीं दे पाते हैं, right? तभी आप tuitions जाते हैं. So here we are giving you personalized attention in the batch by ensuring that there are not more than 6 students. After that, when I talk about a dedicated academic mentor team is there to track and work on the student progress. अभी progress की बात करेंगे. भाई progress सबको पता है, जब भी आप कोई भी किसी भी वे में आप लर्निंग कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, what is the most important thing? The most important thing is here progress. Yes, so to track your progress, are you learning in the class or not? आपको क्लास में समझ में आ रहा है. सपोज आप एनरोल हो गए तो सिर्फ काम यहीं पर खत्म नहीं होता कि आप अपने एनरोलमेंट ले लिया है स्विफ्टलर्न में, बिल्कुल नहीं. आफ्टर द एनरोलमेंट वी विल बी इंश्योरिंग दैट यू आर प्रोग्रेसिंग. और ये हम कैसे बताएंगे? ये हम आपकी क्लास में बिहेवियर प्लस जो भी आप होमवर्क प्लस यहाँ पे मंथली टेस्ट ये सारे करेंगे. ओके, गोलू मोलू हाथी, बड़ा नाइस है. ओके, b² - 4ac, या अभी आते हैं b² - 4ac पे. ओके, yes, Golu Molu Hathi. Okay, what's your name? What's your good name? May I ask that? Okay, if I talk about, so I can say that there is a dedicated academic mentor team for that to track your progress, to track you that where you are lacking. I always said, जहाँ पे आप lack कर रहे हैं वहीं पे हम आपको track करेंगे, right? So lack and track is the most important thing, or I can say target. कभी मैं lack कहती हूँ, कभी मैं target कहती हूँ. That is the most important thing. ठीक है जी. आफ्टर दैट वी कवर सिलेबस. व्हेन आई टॉक अबाउट सिलेबस, सो दैट इज सीबीएसई, आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड. हम सब तरीके के सिलेबस यहाँ पे कवर करवाए जाते हैं इन दिस प्लेटफॉर्म. एंड यस, दैट इज एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू योर स्कूल एग्जाम शेड्यूल. yes Vaibhav. Hey Vaibhav, how are you? Okay, so let's talk about some more key features. The very first, detailed progress report. Yes, when I talk about the detailed progress report, it is nothing but PTM होती है, parent teacher meeting. ठीक है, parent teacher meeting होती है once in a month, and here that we are providing you the detailed progress report, that how you are doing in class 10th, or how you doing in class 7th. So it depends how you are doing in the class actually. Okay, after that you can take unlimited practice test. I think this is the most important feature. What happens जब आप NCERT या किसी भी XYZ आप बुक से पढ़ते हैं, तो what happen at the session, at the end of the day, आपके पास कुछ लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, राइट? अभी आपको प्रैक्टिस करनी है, और दिस टाइम वी कैन से दैट मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. अभी आपने कंसेप्ट तो पढ़ लिया, अब उस कंसेप्ट को अप्लाई कहाँ करें? तो अप्लाई तब तक नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चंस नहीं होंगे. सो हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ
practice sets so that you can apply that particular knowledge which you have read in the chapter. Okay, so for that we have unlimited practice test. After that, when I talk about subjective test, yes, as you all know that subjective test, sabko pata hai, where we have to write the step-by-step answers. Okay, so we are providing you that also for your practice. After that, Swiflearn academic test series. Yes, that's the most important one. I can say that those who are preparing for national Olympiads or national level के जितने भी examinations होते हैं जो उनके लिए prepare कर रही हैं, so here we have sets for them. आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपना एग्जाम दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आर यू प्रिपेयरिंग गुड और नॉट. ओके, तो अभी क्या करना है भाई, एक ट्रायल बुक करके देख लीजिए राइट नाउ, not right now, after the class. For that you can just go to the description box or simply go to the Google, which I call Gyan Devta, and just type www.swiflearn.com over there. जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे ऐसा ही आपको एक बॉक्स मिलेगा, आपको वहां पे अपनी कुछ डिटेल्स पुटअप करनी है एंड देयर यू गो. अभी फिर टीचर आ जाएंगे आपके पास और आपकी ट्रायल क्लास ले लेंगे. वी कैन से दैट रेखा इज विद अस. यस, हेलो रेखा, हाउ आर यू? Okay, so subscribe. Yes, those who are new here. Yes, Vaibhav, have you subscribed the channel? So if not, then do it now. Press the bell icon so that you will never miss any update. I think this is the most important one. आपको अगर update miss नहीं करनी है, notifications चाहिए कि कब कौन सी classes आ रही हैं. Here we go. Okay, so hit the like button if you're really liking the session. Comment. Yes, that is the most important thing. Your suggestion, your queries are always welcome here. And share it to your friends. Even now you can share. अभी आप देख सकते हैं ना वहाँ पे share का एक button है. Even now you can share the link so that your classmates can also join the class and get the benefit from this because this is absolutely free, right? तो चलिए, let's start the topic, that is quadratic equation part 2. So do you know? Okay, अभी तो कोई, I think Vaibhav was there. He was trying to share me that what is the formula for D, and that is called discriminant. So what will we do it? आज हम क्या करने वाले हैं? So आज तो हमारे कुछ special objectives होने वाले हैं. So we can say that we will be solving the quadratic equation by factorization. I think this is the term you are very known of that. Factorization class 8 से start हो जाता है, right? We will be solving quadratic equations using the formula जो हमने कल discuss किया था. After that we have a zero product formula. After that we will be solving quadratic equation by equations reducible method. बहुत easy है, बहुत ही ज़्यादा easy है. ठीक है, तो चलिए, we have seen the solution of quadratic equation. Let's learn the solution of quadratic equation by factorization. Factorization सबको पता है, factors पता है. आर्थिक factorization is not a new term. आप क्लास 10th के हैं तो it is well understood that आपको factorization आता है. क्लियर है? क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत है. फैक्टर सबको पता है. अगर मैं 6x के फैक्टर की बात करूं, 6x स्क्वायर के फैक्टर की बात करूं, सो व्हाट विल बी द फैक्टर? 2 into 3 into x into x. 1 is always there, so just don't forget to write the 1 because 1 is always there. So I can say that these are the factors. So this is how we are going to do the factorization method. So how we can solve the quadratic equation? Here are some steps. The very first, you need to clear all the fractions and brackets if necessary. आपको सबसे पहले फ्रैक्शंस, अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है और अगर कोई चीज ब्रैकेट में है, सो यू हैव टू क्लियर दैट, मींस यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट नेसेसरी. अगर लगता है आपको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है. आफ्टर दैट ट्रांसपोज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज? ट्रांसपोज का मतलब सबको पता है. अगर लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में वी आर चेंजिंग द वैल्यू, सो आई कैन से दैट आई एम ट्रांसपोजिंग देम. So what we have to do, I have to transpose all the terms to the left hand side to get an equation in the form of. So I can say that the very first, you have to take the equation in the general form. I can say that this is a standard form or the general form of, ठीक है, quadratic equation. सबको पता है ax square plus bx plus c is equal to 0 होता है. That is called the general form of. So you need to make this, आपको general form में लेकर आना है. पहले कोई भी equation quadratic equation के form में नहीं है, linear के form में है, brackets में दिए हुए, just solve the bracket and उसको इस form में लेकर आ जाइए. After that, factorize the expressions on the left hand side. अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड, सबको पता है ये लेफ्ट हैंड साइड में है. सो यू हैव टू फैक्टराइज दैट. अब फैक्टराइज करने के मेथड हम देखते हैं. वी नो दैट मिडिल टर्म स्प्लिट इज देयर. पुट ईच फैक्टर इक्वल टू द जीरो एंड सॉल्व. अभी कैसे करते हैं ये देखते हैं, ठीक है. सो हियर आर द 4 स्टेप्स बेसिकली. हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 4 steps. So the very first is zero product rule. Now what is that? Whenever the product of two expressions is zero, at least one of the expression is zero. अब अगर देखिए, I can say that if I'm having, अगर मैं इसको नॉर्मल टर्म्स में बात करूं, अगर 2 into 0 is equal to 0 है, अगर 2 into 0, तो इन दोनों में से एक टर्म तो कम से कम 0 होगा ना, तभी तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 होगा. Here we go. I can say that either one of them will be equal to 0.
either one of them will be equal to 0. So कोई भी हो सकता है, या तो ये वाला हो सकता है या तो ये वाला हो सकता है. So I can say that whenever I'm having something like this, अगर मेरे पास कोई ऐसी equation है, this is also a quadratic equation. This is also a quadratic equation. Now how? Because when I will be multiplying x with x, I will get x square. Very simple. So I can say that this is also a quadratic equation, but this is not in the form of, we have to make it quadratic equation. But if there are solutions like the x minus 3 multiplied by x minus 2 in a bracket is equal to 0. So I can say that either this could be equal to 0, either this could be equal to 0, or either this could be equal to 0. दोनों 0 के equal हो सकती है. And here we go. From by equating this is equal to 0, we will be having the value x is equal to 3, or I can say that x is equal to 2. Right? I think very simple. I think this is the very easiest method. But यहाँ तक लाने के लिए we have to do something. यहाँ तक लाने के लिए, उसको product तक लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है. ठीक है? So let's see that. And today I have a special video for that. Okay. So can we do that? When's the last time you seriously thought about your browser? Okay. Does it look like this? In this video, we're going to discover how to factorize quadratics. You should already know that quadratics are expressions with x squared as the highest power. We discovered how to factorize into a single bracket in this video, and that factorizing and expanding are just the opposites of each other. Factorizing still means to put into brackets, but this time we're looking at two brackets. Each bracket is a factor. So how do we do this? Let's have a look at an example. Start by putting down your two brackets, both with an x at the front, because when they are multiplied together, they will give the x squared. Now look at this number. What multiplies to give -8? 2 and 4 and 1 and 8. Now, which combination of those add to give -2? +2 minus 4 gives us -2. So put those numbers into the brackets. X plus 2, x minus 4. It's really important to check yourself, so just quickly expand the brackets to make sure you factorize correctly. So here's 2 for you to do. I'll leave the steps on screen as a guidance. Pause the video, factorize the quadratics, and click play when you're ready. How'd you get on? So here's one more for you to do, but this time there's no steps to help. Pause the video, factorize the quadratic, and click play when you're ready. Did you get it right? So there we have factorizing quadratics when the coefficient in front of the x squared is 1. These are called monic quadratics. If the coefficient in front of the x squared isn't 1, they're called non-monic quadratics, and we'll discover how to factorize those in another video. So I think it was clear from here. That how we can solve. I think you have learned this. How we middle split. Okay, how we do the middle split. Yes. तो चलिए अभी हम फिर से इसी मेथड को करते हैं. देखिए, they have told that कि अगर x square minus 5x plus 3 होता, तो अगर x का कोफिशिएंट 1 है, so that will be monic-quadratic, right? And if it is not 1, so it is non-monic, right? But here we can see that हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 और 3 है. So we know that how numbers हमें क्या चाहिए. अभी देखिए, middle term split is the method. Middle term split. ठीक है, अगर जिनको आता है वेरी गुड, जिनको नहीं आता है टुडे आई विल बी डूइंग द सेम. ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल, आपको जस्ट इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. यू हैव टू चेक दैट इधर और इधर क्या क्या वैल्यूज है. अभी मैं कोई फॉर्मूला में नहीं जा रही हूँ. आई एम नॉट सेइंग ए, आई एम नॉट सेइंग बी, आई एम नॉट सेइंग सी. मैं यहाँ कहीं नहीं जा रही हूँ. मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो दो नंबर्स हैं लास्ट में, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए. व्हाट आई गेट, 2 3 6.
नाउ ये मुझे 6 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए, आई नीड द फैक्टर्स, मुझे 6 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 6 आए लेकिन ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5। ठीक है, सो कैन आई डू दैट? सो आई विल बी स्टार्टिंग विद 1, सो आई नो दैट 1 6 6 होता है, आफ्टर दैट व्हेन आई गेट बैक टू 2, so 2 3 6 होता है, 3 यहाँ पे रिपीट आ गया, so I can say that this will be the prime factorization. Okay, this will be the prime factorization. Right, now very simple, I need a number कि -5 आ जाए। अभी मुझे पता है कि मैं 6 में से 1 को माइनस करूंगी तो my answer will be -5. वेरी सिंपल, अगर मैं 6 में से 1 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर -5 आएगा, और अगर मतलब 6 में से 1 को माइनस करूंगी तो my answer will be 5. अगर मैं 3 में से 2 को ऐड करूंगी तो भी 5 आएगा। तो आई कैन डू दैट इन ईदर वे, मैं किसी भी फॉर्म में लिख सकती हूँ। राइट, ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। नाउ एज आई टोल्ड यू आई नीड टू मिडिल स्प्लिट दैट, तो मैं 5 की जगह क्या लिख सकती हूँ? मैं 5 की जगह लिख सकती हूँ 6 minus 1, सिंपल 6 minus 1, बिकॉज आई नो दैट 6 1 6 होता है। ठीक है, 6 और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 6 और 1 को मैं माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर जिन बच्चों को साइन कन्वेंशन में दिक्कत होती है तो ये मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा मेथड है। आपको क्या करना है, ये जो 5 है इस 5 की जगह जस्ट ब्रैकेट में 6 minus 1 लिख दीजिए, वेरी सिंपल। ठीक है, और +3 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया, आपने सिर्फ इतना किया कि ये जो 5 यहाँ पर था इसकी जगह आपने क्या रख दिया? 6 minus 1। बाकी इक्वेशन आपने एज इट इज उतार दी। ठीक है, बाकी इक्वेशंस आपने एज इट इज उतार दिए। नाउ आगे बढ़ लेते हैं, अभी क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। नाउ एज आई कैन सी देयर 2x², नाउ ये माइनस है, ये -6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होगा, सो आई कैन से दैट -6, और यहाँ पे आ जाएगा +1x। Yeah, broken 444 is there. Hi, broken. How are you? Okay, now I have +3. So what I have done basically, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। 6 minus 1 मेरे पास ब्रैकेट में बाहर था, यहाँ x था और यहाँ माइनस था। मैंने इस माइनस और x को साथ में लेकर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। नथिंग, -6x आ गया और +x आ गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नाउ व्हाट आई गेट, क्या वैल्यूज मिली है? लेट्स चेक। आई गॉट 2x² minus 6x plus x plus 3। नाउ सबको पता है क्या करते हैं? यस, ये तो बहुत 8th क्लास का कंसेप्ट है। सो आई हैव टू टेक आउट वैल्यू फ्रॉम दिस टू एंड दिस टू। आई हैव टू टेक आउट, मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से कॉमन निकालना है। सो हाउ विल बी आई डूइंग दैट? मैं यहाँ से 2x कॉमन निकाल दूंगी। अभी जिनको कॉमन में प्रॉब्लम है अभी उनके लिए, जिनको आता है आई थिंक वेल अंडरस्टूड है कि 2x हमने कॉमन निकाला, अंदर बचा x -3। ठीक है, आई थिंक इट इज mistaking somewhere. Okay, let me check. Okay. So it was -5, 6 1 is 6, 3 2 is 6. Okay, so it was like that. Okay, so can I do that? Okay, let me just check it. 6 minus 1, I am having -5, so I can say that 6 minus 1 will be -6 plus x. Okay, can we do this like that? क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? Okay, so I can say that. Okay, as I can say that यहाँ पे इसके दो factors are not coming to be equal. Let me do it again. Okay, so sorry for that. Let's take another factors. Another factors लेकर देखते हैं. Yeah, there I have mistaken. अभी देखिए, हमारे पास मल्टीप्लाई करके तो +6 आ रहा था, बट मैंने जो 6 minus 1 लिया था उन दोनों को मल्टीप्लाई करके I will be getting +6. I will be getting -6, right? So I will be writing 2 plus 3x minus +3 is equal to 0. Okay, so sorry for that. Okay, so अभी हम क्या करेंगे, हमें यहीं पे मिस्टेक करना है। अब अगर मैं ऐसे करूंगी तो आपको ध्यान रखना है, माइनस हम 2 plus 3 ले लेंगे x plus 3. Why that was wrong? Because if I am taking 6 value and -1 value, so अगर मैं 6 और -1 को मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर will be -6, but
2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग ओनली 6. यस, सो हियर वी गो. अभी इसको जल्दी से कर लेते हैं. 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. एंड हियर वी गो. 2x विल बी कॉमन. अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1. ओके, यहाँ पे माइनस 3 विल बी कॉमन. अंदर बचेगा x माइनस 1. सो हियर वी गो, इट इज इक्वल टू 0. ओके, सो अगर दो स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग मी, अगर कभी ऐसे गलत हो जाता है तो ये तो आपको भी आता है, ठीक है, तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, राइट. सो हियर वी गो, वी हैव 2x माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. क्या करना है बच्चों? बहुत सिंपल है. देखिए, सबसे पहले हमें इन दोनों टर्म्स में से और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालना है. आई थिंक यहाँ पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है. 8th क्लास में स्टार्ट हो जाता है फैक्टराइजेशन, तो आपको यहाँ पे आना चाहिए कि 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 भी है, एक x भी है और एक x भी है, और यहाँ पे 2 और x है. तो यहाँ से मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ और यहाँ से मैं 2x कॉमन ले सकती हूँ. तो अंदर क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? 1. सिमिलरली आई नो दैट यहाँ पे माइनस 3x है, तो दैट इज 3 इंटू x, और यहाँ पे क्या है? 3 है. अब क्योंकि ये प्लस है तो ये जो प्लस बना है ये दो माइनस से बना है. बहुत सिंपल सी बात है. एक जो प्लस साइन होता है उस प्लस में हमेशा दो माइनस होते हैं. कल भी मैंने आपको बताया था. अगर मैं 9 की बात करूं तो 9 क्या होगा? 3 3 से 9 होगा, लेकिन माइनस 3 इंटू माइनस 3 भी 9 ही होगा. सो यू हैव टू कंसिडर दैट प्लस में दो साइंस छुपे होते हैं, माइनस और माइनस. ठीक है, अगर हम यहाँ के माइनस को और यहाँ के माइनस को परपेंडिकुलर बना दे, दो माइनस है हमारे पास, दोनों को हम परपेंडिकुलर एक दूसरे पे डाल दे, सो दे विल बिकम अ प्लस. ओके, सो दिस इज हाउ वी विल डूइंग दैट. ठीक है, तो अभी हमें कॉमन निकालना था, तो हमने यहाँ पे माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हमने कॉमन निकाल दिया. अंदर बचा x माइनस 1 और यहाँ पे भी बचा x माइनस 1. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट आपके जो ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ रही है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए. अगर ऐसा है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. क्लियर? अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं. एक आ गया है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. हम वही जीरो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. और दूसरी वैल्यू क्या आ गई है? x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो क्या यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, वी नो दैट 2x विल बी 3, बिकॉज ये माइनस 3 है, उधर जाके प्लस 3 हो जाएगा, और x विल बी इक्वल टू 3/2. और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं कह सकती हूँ x की वैल्यू क्या है? 1. So this is how we will be solving the roots of the equation. So this value, I can say that this value and this value are the roots of this quadratic equation. Okay, बहुत सिंपल है. ठीक है, आपको सिर्फ मिडिल टर्म स्प्रेड करना है और मेरी जैसी गलती नहीं करनी है जो मैम ने ऑनलाइन गलती करी है. ठीक है, आपको जस्ट कंसिडर ये करना है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव नंबर आ रहा है. क्लियर है? ठीक है, तो चलिए इसका यहाँ पे भी देख लेते हैं. मिडिल टर्म स्प्रेड किया हुआ है इस तरीके से, और आई कैन सी दैट 2x minus 3 is equal to 0 give x is equal to 3/2, और x minus 1 will be equal 0, we कहते हैं x is equal to 1. So I can say that there are two roots. So there are two roots, 1 and 3/2. तो हमें बताएगा टू रूट्स रहे होंगे, तो यहाँ पे जो d है will be greater than c. अभी हम d के रिस्पेक्ट में भी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे आफ्टर दिस. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन. Now solve this by factorization. Again a question. Solve this by factorization. So can we do that? चलिए हम कर सकते हैं. अभी देखिए सिंपल इसको करते हैं. हमें नंबर्स चाहिए 6 2 12. हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आता हो. यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई करके, बिकॉज 6 इज पॉजिटिव एंड -2 इज नेगेटिव. तो दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -12 आता हो और ऐड करके आता हो -1. ऐड करके आता हो -1. ठीक है, तो क्या हो जाएंगे दो नंबर्स? भाई हमें पता है, अगर हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे तो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? पहले तो हो जाएगा 1 12 12, दूसरा हो जाएगा 2 6 12, तीसरा हो जाएगा 3 4 12. तो इनमें से कौन सा बन रहा है? देखिए 3 4 12 है, और 4 में से मैं 3 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा. क्लियर है? सो आई विल बी टेकिंग दिस. मैं किसको लूंगी? इसको कंसिडर करूंगी, 3 और 4 वाले को. But here I need to consider that कि मेरा -x आ रहा है, तो मुझे क्या लेना है? 4 बड़ा लेना है और 3 छोटा लेना है. मतलब -4 लेना है और +3 लेना है. ठीक है, as you can see that +3 and -4x. अगर आप उल्टा ले लेंगे, अगर आप 4x और -3x ले लेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करके आपका आएगा x
बट हमारे पास मिडिल में क्या है, मिडिल में हमारे पास -x है, तो यहाँ पे ये वैल्यू कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। और आप कैसे कर सकते हैं, और अगर आपके पास पता है आपको कि यहाँ पे 1 आ रहा है, तो आप एक और मेथड से इसको कर सकते हैं। आप सिंपली लिख सकते हैं 6x² माइनस, आप ब्रैकेट में 1 आया था ना, ब्रैकेट में क्या आया था 1, तो आप इसको 4 - 3x भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट जब मैं 4 - 3 को सॉल्व करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप इस भी तरीके से कर सकते हैं और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। -2 is equal to 0. Now can I solve this? ठीक है, इसको कर लेते हैं 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अभी क्या करना है, अभी क्या बताया था, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, टेक आउट द कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म। अब 6x² है, तो 6x² को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 3 × x 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 × x। जिनको नहीं आता कॉमन निकालना, ये डिटेल उनके लिए है, जिनको आता है तो वेरी गुड, आप जस्ट 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। जिनको प्रॉब्लम होती है स्टिल कॉमन निकालने में, ये उनके लिए है। तो कॉमन क्या क्या आ गया बच्चों, देख लेते हैं। 2 कॉमन, 2 कॉमन, x कॉमन, x कॉमन, तो आई कैन से दैट 2x तो कॉमन आ गया। बचा क्या, देख लेते हैं क्या बच रहा है, बच रहा है 3x, तो आई विल बी राइटिंग 3x माइनस, यहाँ पे क्या बच रहा है 2, सो आई विल बी राइटिंग। ठीक है जी, अब क्या हुआ, अब एक बहुत बड़ी बात हो गई, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है। या कुमकुम सिंह इज सेइंग हेलो, हेलो कुमकुम सिंह, आई कैन से दैट यहाँ पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बट 1 इज ऑलवेज देयर, हम कह सकते हैं कि 1 इज ऑलवेज देयर, तो आई कैन से दैट यहाँ से +1 कॉमन आ जाएगा एंड आई विल बी राइटिंग 3x - 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई गॉट द 2 zeros, एक 2x + 1 और एक 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको 0 को इक्वेट करेंगे एंड आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आई कैन से दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसको 0 के इक्वेट पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, और जब आप इसको 0 के इक्वेट करेंगे दैट इज 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3। तो आई थिंक ये तो आप कर सकते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव ले जाना है, जो मल्टीप्लिकेशन में उसको डिवीजन ले जाना है। ट्रांसपोजिंग तो आपको बहुत अच्छे से आती है, राइट? सो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ठीक है, आपने इस तरीके से किया, फिर आपने रूट्स लिखे, फिर आपने दोनों को 0 के इक्वेट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने दोनों को 0 के इक्वेट किया, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड हियर यू गो विद द आंसर। So therefore, these are called the roots. These are called nothing but roots because these are the values which are satisfying the equation. Simple सी बात है, अगर इस 2/3 को अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। Fair? और अगर आप -1/2 को भी यहाँ पर पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन में, so again मेरे पास 0 आंसर आ जाएगा। So I can say that these are the roots. ठीक है, अभी इसको फाइंड आउट करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √2x² + 7x + 5। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं हाउ विल बी डूइंग दैट। अभी यहाँ पर √2 है और यहाँ पे 5√2 है, सो आई विल बी मल्टीप्लाइंग दीज टू वैल्यूज बिकॉज प्रोडक्ट उसी से आएगा। सो आई कैन से दैट √2 × 5√2। सो आई कैन से दैट √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा दैट विल बी 2। आई कैन से दैट 5 2s are 10। सो आई नीड अ नंबर कि जिसको मल्टीप्लाई करके तो 10 आए बट ऐड करके 7 आए। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन यहाँ पर ये एप्लीकेबल हो रही है कि मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 10 बट ऐड करके आना चाहिए 7। सो दोज हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, क्या आप मुझे कोई 2 नंबर्स ऐसे बता सकते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आएगा और नहीं बट ऐड करके 7 आएगा? या जस्ट टेल मी quickly tell me those 2 values जिनको मल्टीप्लाई करके आएगा 10 एंड ऐड करके आएगा 7। यस, कुमकुम सिंह, ब्रोकन, सब आते हैं जा रहे हैं आप। यस, हाउ विल बी, व्हाट आर द 2 numbers? What are the 2 numbers जिनको मल्टीप्लाई करके आता है 10 और ऐड करके आता है 7? तो चलिए हम 10 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 10 के फैक्टर्स होते हैं 1 10s are 10, 2 5s are 10 और बस यही फैक्टर्स होते हैं। सो आई कैन से दैट 5 and 2 आर द नंबर्स जिनको मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7।
नहीं पता आप बोलिए, ओके मैं ये बोल रही हूँ, अरे नॉर्मल सी बात है कि दो नंबर्स है मेरे पास, मेरे पास दो कंडीशंस है, यहाँ पे ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो 10 आएगा और उन्हीं सेम नंबर को अगर मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास 5 आएगा, सॉरी 7 आएगा। तो वेरी सिंपल सी बात है, इफ आई विल बी डूइंग दैट सो माय आंसर विल बी 5 and 2, माय आंसर विल बी 5 and 2। ठीक है, 5 plus 2 7 होता है और 5 multiplied by 2 10 होता है, वेरी सिंपल। ठीक है ब्रुकन वैभव, सो आई कैन से दैट मैं 7 की जगह 5 plus 2 लिख सकती हूँ क्योंकि हमें 7 को ही स्प्लिट करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कैन आई राइट दिस, तो चलिए लिख देते हैं √2x² प्लस 5 plus 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अभी इसको ओपन कर लेते हैं, √2x² प्लस 5x प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पे कोई भी साइन नेगेटिव नहीं है, तो अगर साइन नेगेटिव नहीं है तो हमें प्लस माइनस देखने की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपली कर सकते हैं। नाउ हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब क्या हुआ, अभी तो कुछ अच्छा सा हो गया है। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पे √2 है, चलिए लेट मी चेंज द कलर, यहाँ पे √2x 5x है और यहाँ पे 2x प्लस 5√2। अभी हमें इससे कॉमन निकालना है, तो कैसे निकालें, कॉमन तो कुछ नहीं निकल रहा है, आई डोंट थिंक कुछ निकल रहा है, √2 अलग है 5 अलग है, मैं चाह के भी इनका कॉमन नहीं निकाल सकती, बट यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एक सिंगल x है, सो आई कैन टेक आउट 1x एज कॉमन एंड यहाँ पे बच जाएगा √2x प्लस 5। नाउ हियर वी गो अगेन, 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, याद रखिए √2 वाले क्वेश्चन, रूट्स वाले क्वेश्चन में आप एक सिंगल नंबर को, आप 2 को √2 into √2 लिख सकते हैं। यस, नवीन इज देयर, हेलो नवीन, हाउ आर यू, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। आपको ये याद रखना है कि अगर 10 है सपोज, तो मुझे 10 का अगर मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो आई कैन राइट √10 into √10, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, एक पॉइंट में आके आप फंस जाएंगे, आप बोलेंगे 2 है, √2 है, मैं कहाँ से कॉमन लूं। सो हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू रिमेंबर दैट आई कैन राइट अ नंबर इन √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, प्लस यहाँ पे 5 था और एक √2 था, तो ये √2 और ये वाला √2 मैं यहाँ ले आई, तो आई कैन राइट दिस √2 इज कॉमन और अंदर मेरे पास बच गया √2x प्लस 5। Yes, we are correct. Why we are correct? Because this value and this value is same. Yes. So if this value is same, I can say that I am correct. Poonam is saying, okay, ma'am. Hi, Poonam. How are you? Okay. So I can say that my roots x plus 2, my product 0, and √2x plus 5 is equal to 0. आगे आपको पता है क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू पुट x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 एंड फॉर नेक्स्ट यू हैव टू पुट √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो हियर आई गो विद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -√2 आ जाएगी और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 5 है, उधर जाके -5 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई में है, √2 डिवाइड में आ जाएगा और इसको हम कर देंगे डब्बे में बंद। जो मैं आपको बोलती हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना मैथ्स में, उसको हम छोड़ते नहीं है, तो भाई किसी की नजरों से दूर नहीं होना चाहिए, तो उसको कर दो डब्बों में बंद। तो दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ठीक है, बहुत अच्छी क्वेश्चन थी, सिंपल। रूल्स याद रखने हैं, रूल्स क्या होने चाहिए कि लास्ट के जो दो नंबर्स है ए और सी वाले जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और ऐड बीच वाले को ऐड करके आना चाहिए। आई डोंट थिंक यहाँ से आप किसी को कॉमन निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने आपको बहुत क्लियर वे में दिखा दिया है कि कॉमन कैसे निकालते हैं। So I can say that my answer is correct. मैम का आंसर करेक्ट आता है ना तो बड़े अच्छा लगता है। Okay, so can we do this as a factorization? So we have to do this by factorization. मैं इसको और एक मेथड से कर सकती हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगी, बट अभी factorization लिखा है तो we have to do this by factorization. अभी क्या करें, सबसे पहले क्या था कि अगर फ्रैक्शन में कोई चीज है तो उसको एलिमिनेट करिए। अब फ्रैक्शन में कोई चीज है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं एलसीएम ही लूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलसीएम ही लूंगी। सो एलसीएम लेने के लिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो कैन वी डू दैट, कैन वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हियर वी गो x² प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 2s are 4 अपॉन 5, आई कैन से 5 बाय। समझ में आया, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं किया है। ये जो x था इसको यहाँ ले गए, ये जो नंबर था इसको यहाँ ले गए, तो
ऑब्वियसली x के पास जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x माइनस वन के पास जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप हायर क्लास के स्टूडेंट है, आई डोंट थिंक मुझे इतना डिटेल में आपको बताने की जरूरत है, बट अगर फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ऐसे होगा। नाउ कैन वी सॉल्व दिस? चलिए नाउ अभी हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। सो कैन वी सॉल्व दिस? एक्स स्क्वायर माइनस, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है। हु इज गोइंग टू टेल मी दैट व्हाट इज a माइनस बी होल स्क्वायर? Yes, who those who are watching me right now, just write me that, and yes, those who are new here, kindly subscribe to our channel अगर आपको ऐसी ही क्लासेस आगे चाहिए, अगर आप ऐसी ही क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, so for that you need to subscribe the channel. Okay, yes, मैं जैसे ही सब्सक्राइब का बोलो बस ठीक है। चलिए, not a problem at all. Please yes, tell me what is the formula for a minus b whole square, and till then let me do that. X square है, now this is, I will be opening x square, ठीक है, आई विल बी ओपनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, वाई इज माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ, चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने क्या किया? सिंपल क्रॉस मल्टी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यस वेरी गुड आदित्य। सो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। इफ आई विल बी ओपनिंग दिस, तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसके ब्रैकेट को ओपन करूंगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ से क्या आ जाएगा? 5। अभी देखो ये वाला x इस वाले x से मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, सो आई कैन से दैट 5x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, इतना समझ में आया? बाहर 2 भी है हमारे पास। अभी क्या हुआ? एक्स स्क्वायर से कट गया एक्स स्क्वायर, कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि मैम ने लगा दिया है गलत साइन, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आएगा प्लस। सो आई कैन से दैट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। सो अब देखिए, आई नीड टू डू एड दिस, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 2x या प्लस 1, या that's great, and here we go with 5x square minus 5x. now ये बाहर 2 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, I will be getting 4x square minus 4x plus 1 is equal to 5x square minus 5x, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा? और हमें मिल जाएगा, सारी वैल्यूज को उधर लेके जाइए, बिकॉज वहां पे 5x स्क्वायर बड़ा है। सो व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट 5x स्क्वायर minus 4x square minus 5x minus 4x, sorry, plus 4x minus 1 is equal to 0. Okay, this is how. Now I have to, now 5x square minus 4x square कितना हो जाएगा बच्चों? 5x square minus 4x square आपका हो जाएगा simply x square minus 5x plus 4x will be minus x, and I'm having minus 1 is equal to 0. Now this is the quadratic equation. Can you see? ये बन गई आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कैन यू सॉल्व दिस? क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? इट इज इजी टू सॉल्व दिस, बहुत इजी है। और ठीक है, यहाँ पे अगर 1 आएगा तो आई डोंट थिंक यहाँ पे, क्योंकि अगर 1 माइनस 1 है, ठीक है, आई थिंक वी हैव मिस्टेकन। अभी 2 से यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 भी आएगा, और यहाँ पे आएगा -2, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे -2 आ गया, अभी आपको 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको भाई मल्टीप्लाई करके -2 आता हो और ऐड करके -1 आता हो, तो सिंपल आप कर सकते हैं। 2 1 2 होता है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 में से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। सो यू कैन सॉल्व इट इजी, ठीक है। इक्वेशन मैंने आपको बना के दे दी है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एंड व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इट यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -1। मैंने आपको बोला ना 1 and 2 दो ही फैक्टर आएंगे, सो हियर वी कैन से दैट दीज आर द फैक्टर्स। Yeah. Now we will be using a substitution method. Now what is substitution? Use the substitution x is equal to 3y plus 1. What we have to put? We have to put 3y plus 1 as x. So जब मैं 3y plus 1 पुट करूंगी तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? भाई बहुत सिंपल सी बात है, 3y plus 1 की जगह मुझे x रखना है, तो ये x है, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 5x स्क्वायर, ये बन जाएगी, ये भी x हो गया, ये x बन जाएगा, ये बन जाएगा 6x और -8 is equal to 0. Now I will be solving this. मैं इसको सॉल्व कर लूंगी, बहुत सिंपल है, आपको बता दिया फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। देखिए, हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 5 8 40, और हमें ऐड करके क्या चाहिए? हमें ऐड करके चाहिए 6। तो क्या ऐसे दो नंबर्स हैं? यस आद्या, पूनम, नवीन, दोस्त हु आर वाचिंग मी राइट नाउ,
जस्ट टेल मी ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आ जाए 40 बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ जाए 6। यस, वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 6 आएगा और मल्टीप्लाई करके आएगा 40? दिस आई कैन आस्क, वेरी इजी। आई थिंक इट इज वेरी वेरी इजी। सो कैन आई आस्क दिस? दो नंबर्स हैं, वही मैं कह रही हूँ, दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए कितना? 40, बट अगर मैं उनको क्या करूंगी, ऐड करूंगी, तो मेरे पास आना चाहिए 6। ये सब्ट्रैक्ट करूंगी। इट इज नॉट नेसेसरी टू ऐड एवरीवेयर। हम इंटीजर्स पढ़ते हैं तो इंटीजर्स में हमें पता है ऐड एंड सब्ट्रैक्शन हम दोनों कर सकते हैं, राइट? सो आर देयर टू नंबर्स? क्या हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं? यस, वी हैव 10 and 4. Yes, we have 10 and 4. 10 4s are 40 and 10 minus 4 is equal to 6. So I can say that I can write this as a split number. Split number में मैं 6 को क्या लिख सकती हूँ? मैं 6 को लिख सकती हूँ 10 minus 4. ठीक है, 10 minus 4 में बहुत इजीली लिख सकती हूँ। ठीक है, सो इफ यू विल बी सॉल्विंग दिस, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, 10 minus 4x minus 8 is equal to 0. अभी आप क्या करेंगे, आप इन दोनों से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन निकालने के लिए यू कंसिडर दिस, सो सॉरी, कि यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, -4x है और -8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं इसको लिख सकती हूँ 4 into x और मैं 8 को लिख सकती हूँ 4 into 2, बट यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो आई कैन टेक आउट -4 कॉमन। आई कैन टेक आउट -4 कॉमन, अंदर बच जाएगा x -2, तो यहीं पे सॉरी x प्लस, तो यहाँ पे यही होगा। ठीक है, सो आई कैन से दैट आई गॉट द टू रूट्स। मेरे पास दो रूट्स आ गए, कौन कौन से? एक x इज इक्वल टू -2 और एक x इज इक्वल टू 4/5, राइट? सो वी हैव टेकन x इज इक्वल टू 3y प्लस 1। हमने x की वैल्यू क्या ली थी? 3y प्लस 1। तो भाई पुट तो करना है ना, हमने x की वैल्यू को स्टार्टिंग में कंसिडर किया था 3y प्लस 1। अभी तो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ठीक है, तो बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर y, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन किस में थी? y में थी। तो हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल, वी विल बी पुटिंग बैक, हम रख देंगे 3y प्लस 1 इज इक्वल टू -2, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू -1 आ जाएगी, और 3y प्लस 1 वी विल पुटिंग 4/5, सो आई कैन से दैट यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो -1/15 आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, सिंपल। फिर से बता देती हूँ, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब आपने देखा होगा कि हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन किया था x इज इक्वल टू 3y प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या है? -2, तो यहाँ पे रख दीजिए -2 इज इक्वल टू 3y प्लस 1। अभी ये इधर चला जाएगा, y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। सिमिलरली फॉर द सेकेंड, मुझे पता है 3y प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 4/5 के। तो क्या करना है? 1 को इधर ले जाइए और 3 को नीचे ले जाइए। या स्नेहलता इज सेइंग हाय स्नेहलता, हाउ आर यू? इट्स गुड टू सी यू टुडे। या सो क्या समझ में आया हाउ वी कैन डू दैट? ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स के लिए प्लीज आप अपना फैक्टराइजेशन कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए। फैक्टराइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिडिल टर्म स्प्लिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। So now find two consecutive odd positive integers, sum of whose square is 290. तो सबसे पहले तो कॉन्सिक्यूटिव आपको पता होना चाहिए। जब मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको कॉन्सिक्यूटिव बताया था, मींस लगातार। ऑड नंबर्स चाहिए, तो ऑड नंबर्स में क्या? देखिए, एक तो अगर मैं x लूँ और x प्लस 1 लूँ और x प्लस 2, तो ये ऑड नहीं है, ठीक है। सो फॉर द ऑड नंबर आई नीड टू कंसिडर, अगर मैं पहला नंबर x लेती हूँ तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? उसमें मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी वो ऑड बनेगा। अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 है और अगर मैं उनमें 1 ऐड कर दूं तो ये तो इवन नंबर बन रहा है। यस, तो अगर मेरे पास 1 है तो उसमें मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा, दैट इज तब जाके मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, सो आई कैन से दैट माय कॉन्सिक्यूटिव टू नंबर्स विल बी x एंड x प्लस 2। मेरे पास दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या हो जाएंगे? x एंड x प्लस। ये चीज समझने की जरूरत है। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, बट जहाँ पे ऑड कंडीशंस आ गई, सो यू नीड टू कंसिडर द ऑड वाली कंडीशन, और उसमें आपके पास आ जाएगा, अगर पहला नंबर आप x लेंगे तो दूसरा नंबर आपके पास आ जाएगा x प्लस 2, बिकॉज अगर आप 1 लेंगे तो 1 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा टू गेट द 3, 3 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा टू गेट द 5,
5 में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा टू गेट द 7. सो आई कैन से दैट फॉर द ऑड पॉजिटिव इंटीजर आई नीड टू ऐड 2. ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं. अभी दो क्वेश्चन कंसीडर, दो नंबर कंसीडर कर लिए, एक x और एक x प्लस 2. नाउ व्हाट इज द कंडीशन दैट सम ऑफ वो स्क्वायर इज 290. तो इनके स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर का सम, तो एक तो x स्क्वायर हो गया और दूसरे का सम क्या हो गया, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290 है. ये बन गई आपकी इक्वेशन. बट क्या अभी ये प्योर फॉर्म में है? नहीं, ये जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं है. आई नीड टू ओपन दिस, मुझे इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा. एंड जब मैं इसका फॉर्मूला खोल दूंगी तो वो आप मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. बहुत सिंपल सी बात है. चलिए बना लेते हैं. ये बन गई. क्या किया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, बन गया फॉर्मूला. अब इक्वेशन बन गई, आप सॉल्व कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0. नाउ अभी आपको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन बहुत बड़ी है और अगर ये सारे नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं ना, इसके पीछे 2 है, इसके पीछे 4 है, इसके पीछे 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं. सो हमेशा अपने काम को इजी करने की सोचिए. मैथ्स में ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दैट विल बिकम इजी इन कैलकुलेशन. सो एक्स स्क्वायर, मैंने इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया. सो आई गॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143. राइट. तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए. चलिए मैं इस इक्वेशन को लिख लेती हूँ. इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी. चलिए ये इक्वेशन हमारे पास है. अब यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई सबको पता है a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 143 है. सिंपल. a b c, a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो a b c की हमारे पास वैल्यू आ गई. नाउ हमें पता है कि जब भी हमें रूट्स निकालने होते हैं माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है. तो दिस इज माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर, b मुझे पता है 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4ac, 4 that is I can say that 4 into 1 into minus 143 that will be become plus 572. तो जब मैंने 572 में 4 ऐड किया तो I get 576 and I know that 576 is the root of 24. ठीक है. So here we get the values. तो अब ये देखिए हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई है. एक तो है हमारे पास -2. अच्छा ठीक है, चलिए लेट मी टेल यू हाउ वी कैन सॉल्व दैट. अभी हमारे पास आ गई. तो अगर मैं अल्फा और बीटा दो रूट ले लूं, या अगर मैं x1 और x2 ले लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 प्लस 24 अपॉन 2 और x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 माइनस 24 अपॉन 2. सिंपल. -2 माइनस 24 अपॉन 2. तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो दैट विल बी 22 अपॉन 2, दैट विल बी इक्वल टू 11. और यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी तो -26 अपॉन 2 दैट इज -30. सो आई गॉट द 2 वैल्यूज. मेरे पास कितनी वैल्यूज आई है बच्चों, 2 वैल्यूज आई है. एक 11 आया है, एक -13 आया. बट द क्वेश्चन वाज पॉजिटिव और इंटीजर्स, पॉजिटिव और इंटीजर्स. राइट. सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स थे, तो आई कैन टेक द 11 वाली वैल्यू. मैं 13 वाली वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकती बिकॉज इट इज अ नेगेटिव वैल्यू. सो हियर आई हैव अ चॉइस ऑफ इन बिटवीन टू, कि मुझे ये वाला वैल्यू कंसिडर करना है और ये वाला वैल्यू कंसिडर करना है. सो आई विल बी कंसिडरिंग 11 बिकॉज इट इज पॉजिटिव इंटीजर. ओके, इतनी बात समझ में आई. ठीक है जी. सो आई कैन से दैट x की वैल्यू 11 होगी, तो आई कैन से दैट 2, एक हमने x लिया था तो x की वैल्यू तो हमारे पास 11 आ गई. x प्लस 2, दूसरा नंबर हमने क्या लिया था, x प्लस 2, तो दैट विल बिकम 11 प्लस 2 इज इक्वल टू 30. नाउ यू कैन चेक, क्या 11 का स्क्वायर और प्लस 13 का स्क्वायर 290 होता है कि नहीं होता है. चेक कर सकते हैं. यस, यू कैन चेक इट. तो 11 का स्क्वायर आप ले लीजिए, कर ले. 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169. चेक कर लेते हैं. आ गया 290. इट मींस दैट आवर आंसर इज करेक्ट. सो दिस वाज द कंडीशन ना, कि एक दोनों के स्क्वायर का सम, तो दोनों का हमने बोला 11 निकाल दिया, 13 निकाल दिया, दोनों का स्क्वायर कर दो. दोनों का स्क्वायर किया, 11 का 121, 13 का 169, दोनों को ऐड किया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है. सो आई कैन से दैट माय आंसर इज करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन चेक. अगर आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन किया है
आप लास्ट में चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही निकला है कि नहीं निकला। ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी तो नहीं है ना, आपने पीछे पलट के देख लिया, अरे आंसर सही आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक इट। Now you have to find the roots of the quadratic equation if they exist using the quadratic formula. You have to use the quadratic formula. सबसे पहले a b c की वैल्यू लिख देते हैं। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -2√2, okay, and c की वैल्यू है 1. So just apply the formula. X is equal to -b plus minus b square minus 4ac upon 2a. जिन बच्चों ने अभी तक ये फॉर्मूला नहीं लर्न किया है, इट्स अ रिक्वेस्ट दैट यू हैव टू लर्न दिस, बिकॉज बिना इस फॉर्मूले के ये चैप्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -b, आई कैन से दैट माइनस तो ऑलरेडी माइनस है, वो भी माइनस में है, चलिए माइनस -2√2 लिख लेते हैं, प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर, -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2a, that is 2 into a, that is 2 into 2. ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व दिस। अभी माइनस माइनस प्लस हो गया, 2√2 आ गया, अपॉन में क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, नाउ कंसिडर दिस, -√2 मल्टीप्लाई बाय -2√2 मल्टीप्लाई बाय -2√2 क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 2 2 जा 4 और √2 into √2 2, so I can say that 8, तो मेरे पास आ गया 8, 4 2 जा 8, 8 minus 8 is equal to 0, so I can say that इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या था, 0 था। तो कैन यू टेल मी कि जिसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है उसके कैसे रूट्स आते हैं। चलिए तब तक मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। √2/4, आई कैन से दैट 2 2 जा 4, और अगर मेरे पास √2/2 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ √2 को मैं लिख सकती हूँ √2 मल्टीप्लाई बाय √2, एक √2 से एक √2 कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 1/√2। सो दिस इज माय आंसर 1/√2। ठीक है जी, एंड ओनली 1 रूट आएगा क्योंकि d 0 के इक्वल है, तो आई कैन से दैट 2 इक्वल रूट्स आएंगे, सो आई कैन से दैट इसके आंसर होंगे 1/√2 एंड 1/√2। Why they are equal? Because d is equal to 0, और d क्या होता है, d होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, आपको निकालने। ठीक है, इफ दे एग्जिस्ट यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको रूट्स देखने हैं कि रियल आ रहे हैं कि नॉट रियल आ रहे हैं या इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको चेक करना है, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड आउट। अभी इसका देखो नो रियल रूट्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसका d चेक कर लेते हैं। चलिए इसका d चेक कर लेते हैं, d क्या आ जाएगा, b स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, सो आई कैन से दैट 4 4 जा 16 minus 20, it is coming out to be -4, so I can say that d is less than equal to 0, तो इसके no real roots आएंगे, तो no real roots आएंगे तो we don't have to find that। ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि नॉट रियल रूट्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, नाउ इक्वेशन रिड्यूसिबल। अब रिड्यूसिबल का मतलब क्या है कि जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, वेरी सिंपल, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अभी देखिए 2x 4 है, -5x स्क्वायर है, +3 इज इक्वल टू 0, तो क्या करूं इसको रिड्यूस करने के लिए, व्हाट शुड आई डू, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। चलिए लेट्स डिवाइड द होल इक्वेशन बाय x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर से होल इक्वेशन को डिवाइड करते थे, देखिए तो जब मैं इसको x स्क्वायर से डिवाइड करूंगी, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड करूंगी, ओके नो सॉरी, let's take x square is equal to y, let's take x square is equal to y। ठीक है, तो जब आपने x स्क्वायर, तो आप x4 को क्या लिख सकते हैं, x4 को आप x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर लिख सकते हैं, सो आई कैन से दैट दैट विल बिकम y इंटू वाई, सो मेरे पास बन जाएगा 2y स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर को आपने y लिखा है, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको 5y और इसको आप लिख सकते हैं +3 इज इक्वल टू 0, तो बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक 4 डिग्री में थी, आपने इसको 2 डिग्री में चेंज कर दिया। कैसे कर दिया, सिंपली यू हैव पुट x स्क्वायर, एक x स्क्वायर की वैल्यू को आपने y रख दिया। ठीक है, देखिए मैथ्स में व्हाट वी डू, हम वी ट्राई टू मेक अवर वर्क इजी। अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करने जाएंगे ना तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो वी आर मेकिंग अवर सेल्फ, हम अपना काम बहुत ईजी कर रहे हैं, फॉर दैट वी आर डूइंग दिस, एंड दिस इज द वेरी गुड मेथड, आई कैन से दैट।
ठीक है, तो चलिए लेट्स सी दैट हाउ वी कैन डू इट फर्दर। अभी देखिए इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये तो 2y प्लस माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। मल्टीप्लाई करके आपको दो नंबर्स को 6 चाहिए और ऐड करके -5 चाहिए, तो वही वाला क्वेश्चन है, -2 -3। ठीक है जी, -2 और -3। तो देखिए इसके बाद दो आपके रूट्स आ गए। कौन कौन से रूट्स आए हैं आपके पास? एक y की वैल्यू 1 आ गई और एक y की वैल्यू 3/2 आ गई। बट द कंडीशन अप्लाई है कि आपने तो कुछ और पुट किया था। आपने ये पुट किया था कि x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आई कैन से दैट x की वैल्यू आ जाएगी, जब आप रूट लगाएंगे यहाँ पे x की जगह आप लगाएंगे √1, तो √1 में आ जाएगा प्लस माइनस 1। मैंने आपको कल भी बताया था, हमेशा जब भी रूट हटता है उसकी दो वैल्यूज आती हैं, बिकॉज -1 इंटू -1 भी 1 होगा और +1 इंटू +1 भी 1 होगा। सो हमें दो वैल्यूज लेनी है। सिमिलरली y की वैल्यू आ गई 3/2, तो आई कैन से दैट x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। पुट अप करेंगे, आफ्टर दैट x की वैल्यू भी आ जाएगी प्लस माइनस √3/2। ओके, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अभी देखिए इसकी 4 वैल्यूज आई हैं, बट देयर इज अ कंडीशन दैट ये आ गया √3/2। देयर इज अ कंडीशन दैट हम कभी भी डिनोमिनेटर में √2 नहीं छोड़ सकते। रैशनलाइजेशन पढ़ा होगा आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में। जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट चैप्टर में एक कंसेप्ट है रैशनलाइजेशन, और आईसीएसई स्टूडेंट्स आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा रैशनलाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन? कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट की वैल्यू नहीं छोड़ सकते। वी नीड टू रैशनलाइज दैट। सो इन ऑर्डर टू रैशनलाइज दैट, √3/√2 है तो उसको √2 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप उसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 into √2 will become 2 and √3 into √2 will become 6. So I can say that √6/2. तो देखिए अब हमारे पास 4 वैल्यूज आई हैं। हाउ मेनी 4 वैल्यूज आर देयर? 4। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन थी, कंसिडर दिस, इक्वेशन थी वो x4 में थी, तो जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, जितनी डिग्रीज होंगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करें, तो देख के तो लग रहा है कि भाई पता नहीं कैसे होगा। बहुत सिंपल है, नॉट टू वरी। आप क्या कर लीजिए, आप रूट x1 माइनस x को कर लीजिए y कंसिडर। let us consider is very much important. Okay, let us consider. So let this value is equal to y. अब अगर ये y है तो ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर ये y है तो ये इसका रेसिप्रोकल है ना। देखो x नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। तो आई कैन राइट दिस 1/y is equal to 6 2 12 13/6। तो रिड्यूस कर दिया ना, दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस। दिस इज कॉल्ड द रिड्यूस। मैंने क्या किया, ये ऐसा नहीं था। अगर मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करने जाऊंगी बहुत लंबा टाइम मिलेगा, प्लस कैलकुलेशन में बड़ी माथापच्ची हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। सॉरी टू यूज दैट वर्ड, बट ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो क्या करेंगे, वेरी सिंपल, y ले लिया, अभी इसका उल्टा था तो 1/y ले लिया। अब इसको क्वाड्रेटिक बना तो बन जाएगा, बन जाएगा, अपॉन 1 ले लीजिए। y से y कंसेप्ट तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² प्लस 1 is equal अपॉन y is equal to 13/6। इसे उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी y² प्लस 1, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखिए 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 13y। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 6y² प्लस 6 माइनस 13y इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूंगी तो माय आंसर विल बी 6y² माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत सिंपल। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक दिस सॉल्यूशन। मुझे इसके सॉल्यूशन निकालने, रूट्स निकालने। अब मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूं या मैं मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करूं। ठीक है, मैं यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट यूज कर रही हूँ, आप इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, इट्स योर विश। पेपर में कहीं भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको उसमें क्या यूज करना है। ठीक है, तो आई कैन से दैट 6 6 36, मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आता हो, और ऐसा नंबर चाहिए जिसको ऐड करके -30, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 आता हो।
तो क्या मेरे पास नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करके तो 36 आ रहा है और ऐड करके 13 आ रहा है, तो 36 के फैक्टर्स देखिए, 6 6 36, बिल्कुल नहीं, 9 4 36, यस, सो आई कैन से दैट 6y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिख दीजिए 9 + 4 + 6 x आ जाएगा, या सॉरी y आ जाएगा, इज +6 = 0। यहाँ से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, 6y स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 = 0। यहाँ से आपको वैल्यू कंसिडर करनी है, तो वैल्यू कंसिडर करने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, नहीं, दिस वाज इंपॉर्टेंट, आई डोंट वांट टू इरेज दिस बिकॉज दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ओके, सो आप क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ दोनों से कॉमन ले लीजिए, जब आप इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा, 3y, अंदर बच जाएगा y माइनस 3, सॉरी, अगर आपने सिर्फ 3y कॉमन लिया तो अंदर बच जाएगा 2, ओके, सो अंदर बच जाएगा 2y माइनस 3, ठीक है। और जब आप दूसरे वाले से कंसिडर करेंगे तो माइनस, अगेन क्या बच जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, सॉरी -2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 2y माइनस 3। तो आपके पास दो रूट्स आ गए, एक वैल्यू आ गई 3y माइनस 2 = 0, दिस इज द वन वैल्यू, एंड अदर वैल्यू इज 2y माइनस, वैल्यू आ जाएगी 2y minus 3 = 0. So I can say that these are the two values. 3y minus 2 = 0 and 2y minus 3 = 0. ठीक है, अभी यहाँ से आप क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग, ओके, सो y की वैल्यू कैसे आ जाएगी, पहले वाले से आ जाएगी 2/3 और सेकेंड वाले से क्या आ जाएगी, 3/2। बहुत सिंपल है, देखिए ये -2 था, इधर गया +2, 3 डिनोमिनेटर में, यहाँ -3 था, यहाँ 2, ठीक है। अब ये याद रखिए कि यहाँ पे आपने क्या कंसिडर किया था, आपने, हमें इक्वेशन x में थी, इक्वेशन वाज इन x, तो हमें क्या करना है, x ओवर 1 माइनस x को एक बार आप 2/3 के इक्वल रखेंगे और दूसरी बार सिमिलरली आप x ओवर 1 माइनस x को 3/2 के इक्वल लिखें। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपने y की वैल्यूज निकाली है बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट द इक्वेशन वाज इन x, so you need to find the value of x also। अब इसको कैसे सॉल्व करें, बता दूं, इसको कैसे सॉल्व करें, इसके लिए we will be squaring on both the sides, ठीक है। सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी स्क्वायरिंग द बोथ द साइड्स। तो जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से x, यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2 2s are 4 and 3 3s are 9, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ओवर 1 माइनस x इज इक्वल टू 3 3s are 9 ओवर, ठीक है। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड नाउ यू कैन अगेन सॉल्व दिस। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। कर लेंगे ना, 9x यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, चलिए मैं ही करके बता देती हूँ, वेरी सिंपल। चलिए ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, ठीक है। तो 9x माइनस 4x कितना आ जाएगा, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4x इज इक्वल टू 9 माइनस, आप इन दोनों से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज हाउ यू विल बी सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है, ओके। आंसर आ जाएगा 9/13 और 4/13, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ये भी करना है, ओके। 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखो बहुत नॉर्मल सी इक्वेशन है, व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपको रूट्स बता देती हूँ, ठीक है, मैं आपको रूट्स बता देती हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू एक -1/3 आएगी और x की वैल्यू एक आएगी आपके पास 3। आप सॉल्व तो खुद कर सकते हैं ना, आई डोंट थिंक सॉल्व करने में कोई दिक्कत है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए बोला है x बिलोंग्स टू z। अब सॉल्यूशन सेट आपको पता है क्या होता है, सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है I have to take out the values from the integers, मुझे integers से वैल्यू निकालनी है।
तो जब मुझे इंटीजर्स से वैल्यू निकालनी है, सो व्हाट विल बी माय आंसर? इन दोनों में से इंटीजर कौन है? इन दोनों में से इंटीजर ये है। सो फॉर द फर्स्ट पार्ट माय सॉल्यूशन सेट विल बी, आपको इनइक्वालिटीज में बताया था कि सेट को हम हमेशा, चाहे वो रिप्लेसमेंट सेट हो या वो सॉल्यूशन सेट हो, वी ऑलवेज राइट दैट इन कर्ली ब्रैकेट। सो यहाँ पे मेरी वैल्यू सिर्फ 3 होगी। व्हाई 3? बिकॉज 1 माइनस 1/3 इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर आपको पता है, इंटीजर्स आर द होल नंबर बट विद द नेगेटिव आल्सो। इंटीजर्स होल नंबर होते हैं बट उसमें ये तो इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज नॉट एन इंटीजर। सो आई विल बी कंसीडरिंग द सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 3 ओनली। सेकंड पार्ट, now I have x belongs to q. x belongs to q रैशनल नंबर, so yes, इसमें मेरा सॉल्यूशन सेट दोनों हो सकते हैं। भाई रैशनल नंबर तो सारी बहुत ही बिग कैटेगरी होती है, तो आई कैन से दैट यहाँ पे मेरे पास -1/3 भी आएगा और यहाँ पे मेरे पास 3 भी आएगा। ठीक है, मेरे पास 3 भी आएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आ जाएगा। रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर, सो आई कैन से दैट इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा ये दोनों नंबर्स होंगे, बट इंटीजर्स का जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें सिर्फ 3 वैल्यू कंसीडर करेंगे। ठीक है जी, बहुत सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है। एंड यस, जस्ट शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मैम ने सॉल्व नहीं किया है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आपको मैंने शुरू से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए, सो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय द मिडिल टर्म स्प्लिट। अगर मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट अच्छा लगता है तो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगी तो 3 3 9, तो मल्टीप्लाई करके 9 आ रहा है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -8 आ रहा है, तो 9 इज 3 3 आई कैन से दैट 9 और 1, तो 9 1 9 हो जाएगा और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 8 आ जाएगा। सो दिस इज हाउ आई कैन डू दिस। ओके, सो दिस इज इट। इक्वेशन आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट इसका 3 था और इसका सॉल्यूशन सेट 3, -1/3। ठीक है, सो एक फैक्ट बता देते हैं। मेनी पीपल बिलीव दैट बिबिलियंस were the first to solve the quadratic equations. They know how to find two positive numbers with a given positive sum and given positive product, and this problem is equivalent to solving a quadratic equation in the form of x square minus bx plus q is equal to 0. इसको आप ax square plus bx plus c is equal to 0 के इक्वेट करते हैं, right? So what we have learned today, we have learned about solving the quadratic equation by factorization. We have also solved some quadratic equation using the formulas. We have also talk about zero product formula, जिसमें हम दो इक्वेशंस को जीरो के इक्वेट कर देते हैं। yes, we have solving quadratic equation by equation reducible method. I think that is the most important thing. Reducible method means आपके पास कोई complicated सी इक्वेशन है, just try to reduce that. अभी हम उसको अगर वैसे ही सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, दिस इज एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, आप कर सकते हैं। p-15 है, if p minus 15 is equal to 0, you have to find out the value of x. तो आपको क्या करना है, यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बहुत सिंपल है, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 15, p की वैल्यू यहाँ पे 15 रख दीजिए बस, और फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करना आप किसी भी मेथड से करिए, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए या मिडिल टर्म स्प्लिट से करिए। मिडिल टर्म स्प्लिट छोटे नंबर्स के लिए अच्छा होता है, बड़े नंबर्स के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज गुड। ठीक है, ओके, वी हैव वन मोर, ऐसा ही क्वेश्चन है। इफ m plus 5 is equal to 0 and n minus 1 is equal to 0। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोई बात नहीं। देखिए, m plus 5 is equal to 0 है, तो यहाँ से आप m की वैल्यू -5 निकाल सकते हैं, और n minus 1 is equal to 0 है, तो यहाँ से आप n की वैल्यू 1 निकाल सकते हैं। तो m की जगह m की वैल्यू पुट कर दीजिए, n की जगह n की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपकी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। देखिए, एक इक्वेशन आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, ये आपकी इक्वेशन बन गई है। और इक्वेशन बनाना, काम सिर्फ इक्वेशन बनाने तक है, जहां पे आपकी इक्वेशन बन गई वहां तो आप इजी है। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू, यस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हु वाज देयर? आई डोंट नो हु इज देयर। आद्या शर्मा, स्नेहलता, पूनम, Naveen, Broken, Kompum, I don't know who all are there, but still thank you so much for being there. And yes, those who have subscribed to our channel, yeah, those who are new, kindly subscribe to our channel, press the bell icon so that you will never miss any update. Hit the like button, comment, your queries, your suggestions are always welcome. Share, yes, share it to your friends so that they will also get to know that Swiflearn में ICSE बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं। Clear? So वही कहेंगे जो लास्ट में कहते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बिकॉज क्या बोलती हूँ मैं, कोई बता सकता है? यस, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली शॉर्टकट विच विल मेक यू परफेक्ट इन द मैथमेटिक्स।
Okay. At the last, take care. Bye-bye. Stay home, stay safe, and yes, be mask. Bye-bye.